नमस्कार, हूं प्रवीण काजू। भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी है, तस्कर है या फिर डकैत, इतना असर है खादी के उस लिबास में। आज़ादी का यह जश्न मनाए तो किस तरह से, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहे सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है यहाँ के नवास में। जनता के पास एक ही चारा, बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। વર્ષો પહેલા મશહૂર શાયર અદમ ગોંડવીએ લખેલા આ શબ્દો શું વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં દેશની રાજધાનીમાં અથવા રાજનીતિમાં રસ્તા પર ઉતરેલા છે? ન માત્ર વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દે પરંતુ વિવિધ મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓ રસ્તા પર છે। સંસદમાં ચર્ચાનો શૂન્ય અવકાશ છે। આજે વિપક્ષ પણ રસ્તા પર આવ્યું અને વડાપ્રધાન આવાસ સામે રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, કોંગ્રેસે 7 કિલોમીટર પદયાત્રા કરીને ધરણા દીધા। દ્રશ્યો ગઈકાલ રાતથી ચાલી રહ્યા છે। વિચાર કરો, આ જ દિલ્હીમાં, જેને લ્યુટિયન્સ દિલ્હી પણ કહેવાય છે, આ જ દિલ્હીમાં 3 કે 4 વર્ષ પહેલા ખેડૂત આંદોલન થયું, બેરિકેટિંગ થયું, ખીલાઓ ખૂંચાડવામાં આવ્યા, એટલે કે ટ્રેક્ટર દિલ્હી સુધી ન ઘૂસે। એ પણ શાંતિપૂર્ણ માર્ચ હતી, આ પણ શાંતિપૂર્ણ માર્ચ છે। સરકારને 1 વર્ષે લાગ્યું કે 3 કૃષિ કાયદા ઠીક નથી અને કેટલાક લોકોને ન સમજાવી શક્યા, એટલા માટે પરત ખેંચ્યા। પરંતુ શું સરકારનું નાક દબાઈ રહ્યું છે? સવાલો ઘણા બધા છે। જે હિંસા થઈ, લાઠીચાર્જ થયો, એ લાઠીચાર્જના વિરોધમાં રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, કોંગ્રેસે અમિત શાહ અને વડાપ્રધાન મોદીના રાજીનામાની માંગ કરી છે। વિદ્યાર્થીઓ પોતાની માંગ પર અડગ છે કે શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપે। તો તમામ વિપક્ષ હવે આવ્યું છે। આ મુદ્દો માત્ર કોકરોચ જનતા પાર્ટીનો નથી, પરંતુ એ લાખો વિદ્યાર્થીઓનો છે જે લાખો રૂપિયાની ફી ભરીને તેમના માતા પિતા એક સપનું જુએ છે। પણ એ ઘણા માતા પિતાઓ છે કે જેમને પોતાના વાલસોયા દીકરા ગુમાવ્યા આ પેપર લીકમાં, જેમને આત્મહત્યા કરી અને બાદમાં એ ધરણા પર આવ્યા, દંડા એમને પણ પડ્યા। ડોક્ટર્સ આવ્યા સેવા માટે, દંડા એમને પણ પડ્યા। આંદોલનો લોકશાહીમાં ઘણા બધા થયા, ઘણા બધા જોયા। મેસનું બિલ વધવાથી લઈને કેન્દ્રમાં આંદોલન એટલું મજબૂત બને છે કે ભૂતકાળની સરકાર તહેસ નહેસ થઈ જાય છે। આ એ જ ભારત છે। પણ શું અવાજ નથી સંભળાઈ રહ્યો? જવાબદેહીનો શૂન્ય અવકાશ આ દેશમાં થઈ ગયો છે। આ સવાલ દરેક વખતે પૂછાશે અને એટલા માટે પૂછાશે કેમ કે જે સત્તામાં છે, સત્તામાં સરકાર કોઈ પણ હોય, એની જવાબદેહીમાંથી તે છટકી ન શકે। તો આ બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં હાઈકોર્ટે પણ આદેશ કર્યો હોસ્પિટલ બદલવા માટે, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં। સરકાર તરફથી કોઈ દલીલો પણ ન થઈ। રાહુલ ગાંધી જ્યારે ધરણા સ્થળ પર પહોંચ્યા તો કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ પહોંચ્યા હતા, તેમની સાથે વાતચીત પણ થઈ। ઘણા બધા એક્ટર્સ સમર્થનમાં આવી રહ્યા છે। સવાલ એ પણ ઉઠી રહ્યા છે ફંડ ક્યાંથી આવી રહ્યું છે। સવાલ એ પણ ઉઠી રહ્યો છે કે એક પણ ખેડૂત દિલ્હીની અંદર ન ઘૂસી શક્યો। વિદ્યાર્થીઓ આસાનીથી 2 વખત કઈ રીતે ઘૂસી ગયા? સ્ટુડિયોમાં બેઠા બેઠા કદાચ આંકલન ન થાય, પરંતુ ઘણા બધા સંકેત મળી રહ્યા છે અને ઘણા બધા મુદ્દા છે, સળગતા છે, ઇકોનોમીને લઈને, વરસાદને લઈને। એ બધા ઉપર સંસદમાં ચર્ચાનો શૂન્ય અવકાશ છે। પછી ભલે ગમે તેટલા બિલ પસાર થઈ જાય, પરંતુ દેશની સૌથી મોટી પંચાયતમાં જો જનતા સાથે જોડાયેલા મુદ્દે ચર્ચા જ ન થાય અને નાના સૂની વાત પર ન્યાય ન મળે, રસ્તા પર આવવું પડે દરેક વાતમાં, તો એ પણ ઠીક નથી। 2 ખાસ મહેમાન આપણી સાથે જોડાશે। ડૉક્ટર હરિ દેસાઈ, वरिष्ठ पत्रकार, અને आलोक भदौरिया जी अपनी साथे जोड़ाशे। दोनों का स्वागत है। आलोक जी, आपसे शुरुआत करेंगे। अदम गोंडवी का शेर, काफ़ी सारे शेर है, लेकिन जो विस्की गिलास में वाली चीज़ है या फिर सरकार गिरा देने वाली जो चीज़ है, सरकार तोड़ने वाली जो चीज़ है, या फिर किसी को न सुनना, जवाबदेही पे खरा न उतरना, ये काफ़ी बार इस देश में हो चुका है। लेकिन जो आजकल घट रहा है पिछले 2 दिन से दिल्ली की सड़कों पर, अब तो विपक्ष भी रास्ते पे है, तो ये मुद्दा आपको किस तरह जाता दिख रहा है? क्या सरकार बैकफुट पे, मैं ये शब्द भी नहीं यूज़ करूंगा क्योंकि बैकफुट पर तो पहले भी आई थी, लेकिन क्या मुश्किल बढ़ेगी? क्योंकि उसकी जो मांग है, मुख्य मांग है, 3 मांगे, उसके ऊपर तो अड़ग है। तो क्या होता देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में? इन 2 दिनों में हमने जो देखा। धन्यवाद प्रवीण जी। मुझे इस पूरी प्रक्रिया में केवल 2 सवाल सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। पहला, क्या वो आर्म्ड टेररिस्ट थे, हथियारबंद आतंकवादी थे जिस तरीके से उनसे निपटा जा रहा था? और दूसरा,
क्या उनकी मांग असंभव मांग थी, इम्पॉसिबल डिमांड थी जो पूरी नहीं हो सकती है? मांग क्या थी? अब उसके बाद सवाल उठता है कि मांग क्या? मांग आपने जैसा बिल्कुल सही कहा, मांग ये क्या थी? वो लीक जो हो रहे हैं पेपर, उसी की तो जवाबदेही मांग रहे थे, जवाबदेही तय करने को कह रहे थे। एजुकेशन सिस्टम है और जो टेस्टिंग एजेंसी है, दोनों को ही तो दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे। क्या ये मांग गलत है? और इस मांग के लिए जिम्मेदार कौन है? तो जो जिम्मेदार है, क्या उसको पद से हटना नहीं चाहिए? तो जांच कैसे होगी? अगर वो बंदा अगर पद पे ही है तो जांच कैसे होगी? अब कैसी जांच होगी, इसके लिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लखीमपुर खीरी भी लौट जाइए। एक मंत्री थे केंद्र में, सशक्त, उन मंत्री के बेटे ने एक गाड़ी चलाई लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारियों के ऊपर। हुआ क्या? वो मंत्री अपने पद पे थे, जांच भी होती रही। और वो भी गृह राज्य मंत्री। हाँ, हाँ, केंद्रीय। मतलब महत्वपूर्ण चीज है जिसके पास में पुलिस होती है। मतलब गृह राज्य मंत्री, उसके ऊपर मंत्री, उसके ऊपर होता ही कौन है पुलिस के ऊपर? तो सवाल है कि आप इस नतीजों से क्या पहुंचे? उनकी मांग क्या थी? मांग गलत नहीं थी, मांग बिल्कुल जायज थी। आपको दिक्कत क्या थी? सवाल तो ये है, आप किस बात पे अड़े हुए थे? क्या आप इस बात पे अड़े हुए थे कि आपको उतनी ही आजादी दी गई है, उतना ही बोलने को दिया गया, उतना बोलिए, आप जवाबदेही मत मांगिए? अगर जवाबदेही मांगेंगे तो क्या होगा? ये भी उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि क्या होगा। उन्होंने लाठियां भाजी। अब लाठियां भाजकर अब मैसेज क्या देना है? मैसेज ये है, पहला, अथॉरिटी से सवाल नहीं करना है, किसी भी सूरत में सवाल नहीं करना है। चाहे आपके 22, आपके 20 से ज्यादा लड़के, आपके सहपाठी, आपके छात्र, वो अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन आपको अथॉरिटी से सवाल नहीं करना है। ये मैसेज है। ये मैसेज किसके लिए है? नई पीढ़ी। अब सवाल है कि इस मैसेज को केवल आप यही क्यों लेकर खत्म कर देते हैं? और दूसरा, अच्छा, इस मैसेज को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आप में डर पैदा किया जाएगा। और वो डर ही तो पैदा किया गया जिस तरीके से लाठियां चलाई गई। और डर तो इतना पैदा किया गया कि कुछ तो एक ऐसे दिखाए गए जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, बिना वर्दी के वो डंडे चला रहे हैं। तो डर ही तो आप पैदा करना चाह रहे हैं। डर क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? सवाल तो ये है। अब प्रधानमंत्री को सुरक्षित वहां से निकाल के ले जा रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं 140 करोड़ लोगों को? ये संदेश देना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री संसद के भीतर भी सुरक्षित नहीं है। क्या संदेश है ये? अगर सुरक्षित नहीं है तो संसद की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास? सब उंगलियां तो उठनी चाहिए ना। अगर प्रधानमंत्री के स्तर के व्यक्ति को, जो सांसदों का सिरमौर है, प्रधानमंत्री के पद पे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सुनिश्चित करना सरकार का ही काम है, और वो करनी चाहिए। लेकिन सरकार को चुपके से निकाल कर ले जाना, तो उसके लिए ये भी बताना चाहिए कि वहां पर कितने आतंकवादी थे, उसमें कितने हथियार थे आंदोलनकारियों के पास में। अगर नहीं निकालते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये कहाँ है? वो फोटोएं कहाँ हैं जो हथियार दिखाए? वो फोटोएं कहाँ हैं जो बम दिखाए? वो तो कुछ भी नहीं। पुलिस ने अभी तक मेरे ख्याल से 24 थोड़ा सा और ले लें, 48 घंटे का समय होने वाला है, पुलिस ने अभी तक तो फोटो दिखाई नहीं। इतने हथियारबंद लोग थे। तो सवाल है कि सरकार डर क्यों? अब सरकार इसलिए डर रही है, इसीलिए वो दूसरे को डराना चाह रही है। अब यहीं पर एक शब्द आता है, जो ऑथोरिटेरियन जब स्टेट आ जाती है, तो जितना वो सरकार डरती है उतना ही वो कोशिश करती है कि दूसरे डरे, उससे कोई सवाल ना पूछे। अब बिल्कुल सवाल ना पूछे। अब सवाल है कि अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो पढ़ाई लिखाई का होगा क्या? अब इसको थोड़ा सा और ले जाते, आप कहते हैं कि सवाल पूछेंगे तो मतलब असहमत होंगे, तभी तो सवाल पूछेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं एक अलग ले जाता हूँ, आपके आज के घटनाक्रम से बिल्कुल अलग ले जाता हूँ। विज्ञान की जितनी भी खोजें होती हैं वो पुरानी परंपराओं को मान लेने से ही तो हो जाती ना। क्या आप इससे सहमत हैं? कोई भी नहीं सहमत होगा। कैसे हो जाएगी? आप कहें कि पुरानी चीजें ऐसी होती हैं, बैलगाड़ी से चलते हैं वही अच्छा है, तो लोग फिर अपनी कार का इजाद ही नहीं करते, ना हवाई जहाज का इजाद करते, ना किसी और चीज का इजाद करते, ना सेमीकंडक्टर की सोचते, ना किसी चीज की सोचते। अरे वो तो चल ही रहा, वही तो ठीक है ना, सवाल क्यों सोचूं? ये तो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए सवाल तो, अगर वो शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जाएगी जो आपकी सवाल के पूछने की धार को कुंद कर देगी, तो आप ये मान करके चलिए ये तो देश के लिए नुकसान है, नई पीढ़ी के लिए नुकसान है।
और नई पीढ़ी का मतलब देश के भविष्य के लिए नुकसान है। तो अगर वो भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वो मांग रहे हैं संभावनाएं। आज एक ऐसा है कि एक काफी समृद्ध परिवार का, चाहे वो डॉक्टर या कोई भी समृद्ध, मैं किसी को श्रेणी में नहीं बांटना चाहता, कोई भी पैसे वाला हो तो किसी भी मतलब शैक्षणिक संस्थान में मैनेजमेंट कोटा के तहत एडमिशन ले सकता है। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आप तो गुजरात में भी आपने देखा है। मैनेजमेंट कोटा तो पैसे पे ही मिलता है ना। लेकिन उन गरीब लोगों का क्या, उन 80 करोड़ लोगों का क्या जो अब 5 किलो या इस सब जो राशन पर निर्भर है, वो कहां से लाएंगे इतने पैसे? वो निजी विश्वविद्यालय में कहां से पढ़ पाएंगे? आप याद करिए, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे एमबीए की पढ़ाई हो, मतलब किसी भी 3 प्रोफेशनल कोर्स को आप लेके चलिए, क्या आपको लगता है कि एमबीए की पढ़ाई किसी भी निजी विश्वविद्यालय में लाखों से कम है? भाई 20-20 लाख पहुंच जाती है। डॉक्टर की फीस देखिए कहां से कहां पहुंच जाती है निजी विश्वविद्यालय में, जो ये प्राइवेट में जो करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं, देखिए तो सही। तो उन सब के बीच में एक संभावनाएं कौन देता है? संभावनाएं सरकार देती है, एक टेस्टिंग एजेंसी देती है। अगर टेस्टिंग एजेंसी में पारदर्शिता हो, उसमें सारे कंपिटेंट अगर अथॉरिटी वहां पे हो, तो तभी तो छात्र को भरोसा होगा ना कि भाई चलो, नहीं है मेरे पिता के पास पैसे, मेरे पास नहीं है घर जमीन, नहीं है मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन मैं 12 घंटे पढ़कर अपना भविष्य बना सकता हूं, ये संभावना है उसके पास में, ये विश्वास है। अगर उसी विश्वास को अगर आप खंडित करते हैं, तोड़ देते हैं, और एक बार नहीं अनेक बार आप खंडित कर देते हैं, तो फिर छात्रों का जो उबाल को आप कैसे रोक पाए? क्या पुलिस बल रोक पाएगा? आज तक पुलिस कभी किसी को रोक पाई क्या? आज तक? हाँ, ये ठीक है, किसी भी देश के इतिहास में, या अगर आप इतिहास की अगर गणना करेंगे तो साल, 2 साल, 5 साल और जो 10 साल का पीरियड होता है, अगर देश के हिसाब से गणना करेंगे तो मुश्किल से वो 1 आध मिनट का होगा, आधा मिनट का होगा, अगर 100 साल का या 500 साल का इतिहास गिनेंगे तो। हम्म। वो देखिए वो काल कितना छोटा होगा। तो सवाल है, उस काल के आधार पर आप क्या तय करना चाहते हैं? ओके। मेरा मानना है कि विपक्ष की संभावना है वो होना चाहिए। और जब मैं यहाँ पर एक चीज मैं और कहूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी की जिस तरीके से उदय हुआ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं सोनम वांगचुक के इस्तेमाल से भी सहमत नहीं हूँ। हम्म। क्योंकि आज आपके जो आजादी वाले देश में पिछले अगर 20 सालों का अगर आप इतिहास देखें, तो केवल आपके पास दो ही थे। एक अन्ना हजारे था जिसको आपने इस्तेमाल किया और उसको किनारे छोड़ दिया, पहला। हम्म। क्योंकि उस समय पूरे देश में मीडिया को यही समझा दिया गया था कि अगर लोकपाल बन गया तो देश की सारी समस्या सुलझ गई। क्या ऐसा होना संभव था? नहीं हुआ। लेकिन इसमें कहने कि तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी सब इसकी जमकर छानबीन नहीं की। वही बात इस समय भी आ रही। जिस तरीके से धड़ाधड़ उनको प्रवेश की इजाजत दे देती है, एयरपोर्ट में उतरते हैं, वहां से धड़ाधड़ लेके जाते हैं, ऐसी परमिशन मिलती है। अभी आप देख लीजिएगा, अभी किसान आ रहे हैं, पिछले साल भी आपने देखा था किसानों के आगमन पर बॉर्डर पे क्या किया गया था। यूपी का लगता बॉर्डर जो गाजियाबाद में, गाजीपुर में क्या किया गया था? हम्म। सीमेंट के बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, कीलें लगा गई थी। शंभू बॉर्डर जो हरियाणा से लगा हुआ है, दिल्ली हरियाणा में, वहां क्या किया गया था? वहां से एक खाई खोद दी गई थी जेसीबी लगा करके। तो जब आप इस तरीके का बर्ताव करते हैं तो एक शक तो जाता है। मैं छात्रों की बात से सहमत हूँ, छात्रों के आंदोलन से सहमत हूँ, छात्रों का ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन जिस तरीके से बीज डाले गए, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के उदय और कॉकरोच जनता पार्टी का जिस तरीके से उनको एक शानदार तरीके से वो जेपी नड्डा के कार्यालय में 2 घंटे बैठे रहे, मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूँ। उनको उठ के आ जाना चाहिए था हम्म। अगर वो वास्तव में क्रांति चाहते हैं। और जो हजारों सैकड़ों लड़कों, हजारों लड़कों के साथ में अगर थे, तो उनको वहां से उठ के चले आना चाहिए था। ज्ञापन देखिए, आप भी प्रवीण जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, आप भी मालूम है कि जब कोई बड़ा आदमी या बड़ा अधिकारी जब वो ज्ञापन नहीं लेता है तो उसके वहां पर ज्ञापन दे करके चले आते हैं। हम्म। आप क्यों नहीं आए? राइट। 2 घंटे क्या इंतजार कर रहे थे? क्या आपको पता था कि नड्डा साहब कोई सरकार का ऐसा फैसला कर देंगे कि जिसके बारे में आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या नड्डा साहब ये तय कर देंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे? क्या नड्डा जी तय कर सकते थे कि वो एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म हो जाएगा? आप बताइए, नड्डा जी क्या तय कर सकते? दिक्कत वही हुई ना सर। देसाई सर, जो आलोक जी ने बात की, हम हिंदी में संवाद करेंगे क्योंकि आलोक जी हमारे साथ है और वही कंफर्टेबल रहेगा। जो आलोक जी ने जो किसान आंदोलन की बात की, बैरिकेड्स की बात की और इस आंदोलन की बात की,
स्टूडेंट्स के जो डिमांड्स है वो जेन्यून है और दिख भी रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने घर से बच्चे गंवाए हैं वो भी आज बैठे हैं ना, उसको भी लाठियाँ पड़ी है। लेकिन ये जो दोनों कंपैरिजन है उसके पीछे जो चल रहा है वो शायद वो रिपोर्ट नहीं हो रहा है और उसमें काफ़ी सारे सवाल है। और वैसे वक्त पर जब संसद में सही में देश के संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहाँ पे अकाल है और विपक्ष और विद्यार्थी रास्ते पर। देसाई सर। प्रवीण, हिंदी में बोलना है गुजराती में? हिंदी में सर। आलोक जी है तो फिर नहीं, आलोक जी भली भांति गुजराती समझ पाते होंगे, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हम हमारे गुजराती दर्शकों से ही बात करें तो अच्छा होगा, उन तक मैसेज जाना चाहिए। आप जैसे कहें, कोई दिक्कत नहीं। इट्स अप टू यू सर। हाँ, इट्स अप टू यू, नो वरी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं हिंदी में काम किए हूं तो मैं हिंदी भी भली भांति बोल सकता हूं। एक पहली बात तो यह है कि भदौरिया जी ने जो कहा उससे मैं 100% सहमत हूं और उसका पुनरोच्चार नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जैसे अंत में कहा कि ये दीपके जिस प्रकार से तारणहार बन के अमेरिका से लाए गए और जिस प्रकार सोनम वांगचुक का इस्तेमाल हुआ, ये एक रहस्यमय घटनाक्रम है और ये घटनाक्रम के बारे में आने वाले दिनों में अन्ना हजारे जैसा ही हमें देखने को मिलेगा और वो प्रमाणित भी होगा। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि ये समस्या का समाधान प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, सरकार के लेवल पर भी पहले से संवाद स्थापित करके किया जाना चाहिए था। आंदोलन क्यों होता है? आंदोलन होने की भनक जब आए, सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, उनको पहले से ही संवाद स्थापित करके उनको विश्वास में लेके वो एक्शन मोड में आ जाना चाहिए। यहां पर तो ये सरकार है जो कि कभी ये मानती है, राजनाथ जी ने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। मैं ये मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बात बदल जाएगी ऐसा तो नहीं है, स्थिति बदल जाएगी ऐसा नहीं है, मगर हमारे इतिहास में कुछ ऐसे क्षण भी आए, जैसे नेहरू का कॉलर पकड़ के एक महिला ने पूछा कि आजादी आई, लोकतंत्र आया तो हमें क्या मिला? तो नेहरू ने कहा था कि आप एक प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ सकते हैं, ये आजादी आपको मिली है। दूसरी बात, जब रेलवे एक्सीडेंट हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री थे, वो इस्तीफा दे दिए थे। यानी इस प्रकार से हमारे यहां पर स्वस्थ परंपरा थी, ये परंपरा मोदी शासन में, शाह के शासन में ये परंपरा टूटी है। इनको लगता है कि जब यानी कुछ संकट आता है तो उसमें से अवसर ढूंढते हैं। मोदी जी का तो ये फॉर्मूला है और उनको लगता है कि ये विरोध तो हम दबा देंगे, उसमें विभाजन करा लेंगे। जिस प्रकार से आज जो किसान पंजाब और हरियाणा और यूपी से दिल्ली की ओर कुछ कर रहे थे, उनमें फाटफूट करके उन्होंने मेरे ख्याल से उनको कुछ लोगों को लौटने के लिए तैयार कर दिया, ये भी हम भलीभांति जानते हैं। तो मोदी जी के सरकार को पहले तो संवेदनशील यदि सरकार है, ये शब्द प्रयोग तो बहुत करते रहते हैं कि संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने वाली सरकार है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर इससे उल्टा ही उनका आचरण सब जगह पर हमें दिखाई दे रहा है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था। तो अब जनता जाग चुकी है। मेरे ख्याल से ये जैन जी जो है वो पहले जाग चुका है। हम ये नहीं चाहते कि कोई हिंसा हो, हम तो, और ये बच्चे भी हिंसात्मक कोई काम नहीं किए, शांतिपूर्ण ढंग से गांधी मूल्यों के आधार पर ये काम कर रहे थे। उसके पहले ये जनाब अभिजीत दीपके वो तारणहार बन के अमेरिका से लौटे और सरकार की कृपा थी उन पर। उसके पहले महीने डेढ़ महीने से तो कांग्रेस का एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस वाले आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, जेल भुगत रहे थे। ये बातें गोदी मीडिया में तो आती नहीं थी, लोगों तक पहुंचती नहीं थी, ये हम जानते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार को स्थिति अंकुश से बाहर हो जाए उसके पहले संवाद स्थापित करना चाहिए।
कल मान लीजिए कि नड्डा जी ने इनको बुलाया या तो नड्डा जी के घर ये पहुंच गए, क्योंकि वो भी एक द्विधा है, सत्य क्या है वो मालूम नहीं है, तो उसके पहले उनको संवाद स्थापित करना चाहिए था आंदोलनकारियों के साथ में। अब तो वो मेरे ख्याल से उनके कंट्रोल के बाहर स्थिति पहुंच गई है। और प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने कांग्रेस के एमपीज वो सब अभी धरना दे रहे हैं, जहां कभी वो कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा नहीं सकते थे, धरना नहीं दे सकते थे, वहां ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार को गंभीरता से ये बातें समझना चाहिए और इसका कोई परिणाम ठीक हो ऐसा होना चाहिए। लाठीचार्ज वगैरह से तो काम नहीं चलेगा। प्रवीण। ओके, लाठीचार्ज को जगह नहीं और काफ़ी कम वक्त बचा, लेकिन एक आखिरी टेक आलोक जी आपसे। कनॉट पैलेस वो मतलब कि वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो पत्थर इकट्ठे हुए और जो वीडियोस सोशल मीडिया पर आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में कम दिखता है, और दिक्कत भी नहीं है, क्यों कम दिखता है वो पब्लिक पर छोड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर पत्थर कैसे पहुँच गए बिना नेम प्लेट के सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस और कुछ ऐसे ही फॉर्मल ड्रेस में अच्छे से आ गए, जिसने अच्छी तरह से पिटाई की, पिटाई शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ रास्ते पे हो रहा है, विपक्ष रास्ते पे है। सर, तो संसद में क्या होगा जहाँ पे तो सही में चर्चा होनी चाहिए? वो भी जनता के टैक्स के पैसे से चलता है ना, एक एक मिनट। हमारे मुद्दों की चर्चा के लिए तो संसद बनी है। अगर ये कुछ रास्ते पे होने लगा तो ये नई जो बड़ी अच्छे बजट से संसद बनी है, वहां पे क्या होगा आलोक जी? वहां पे क्या होगा, ये बड़ा सवाल, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। हाँ। क्योंकि इस देश में अब मामला ये हो गया है कि अब जनमत भी या सांसद भी मैन्युफैक्चर किए जाने लगे हैं। अभी तक किसी भी पार्टी से आओ, अब वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। भाई हमको इतने नंबर चाहिए, भाई इतने नंबर ले आओ। तो जब संसद जब इस दशा को प्राप्त हो जाए और वहां के जो सांसद के मतलब जीते हैं वहां पर, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो जीते हैं और इस तरीके से अगर पाला बदल कर बैठ जाते हैं, तो अब आप कौन से संसद की बात कर रहे हैं और किन संसदीय परंपराओं की बात करना चाहते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों किसी को लेना चाहते हैं, क्यों किसी को चक्की पीसी बोलते हैं, फिर उसके बाद उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दिलवा देते हैं। एक बार आप चीफ मिनिस्टर की शपथ रात के 12 बजे दिलवाते हैं कोश्यारी साहब से, चीफ मिनिस्टर की देते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की देते हैं और दूसरे दिन चली जाती है। कितनी जगह अब संसदीय परंपराओं का कोई मतलब मुझे नहीं रह गया कि कोई मतलब रह गया है। क्योंकि आप अगर किसी भी बात पर संसद में एक ठोस बहस नहीं होती, और अगर वो ठोस बहस भी अगर विपक्ष की अगर आवाज भी उठती है, तो उसका कोई सीधा और ठोस जवाब नहीं आता। वो जवाब चला जाता है 40 और 50 साल पुराना। तो मेरा मानना है कि अब इतना कार्यकाल हो गया है, 12 साल का कार्यकाल बड़ा कार्यकाल होता है, छोटा नहीं होता है। अब मुझे तो लगता है कि ये उम्मीद करनी चाहिए, शायद, हालांकि उम्मीद बहुत गलत शब्द होगा करना, लेकिन मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि अब कम से कम 12 साल के मौजूदा कार्यकाल पे ही जवाब दे, नेहरू और उस पर ना जाए कि क्या होगा। क्योंकि आपको जो उत्तरदायित्व इसके लिए दिया है वो 12 साल का समय बहुत होता है। अब अपनी समस्याओं को सुनिए, सुनना सीखिए और ये डर लोगों में पैदा करना बंद करिए और एक जवाबदेही से ना बचें। यही एक मुझे लगता है कि लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को बचाने का एकमात्र मंत्र। अच्छी बात की, और संवाद को स्थान होना चाहिए, या फिर संवाद अगर होता बाहर या फिर संसद में चर्चा के माध्यम से, तो शायद रास्ता निकल सकता था। और यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में जो हमारे व्याज का वो फंडा है ना, तो वहाँ पे व्याज से गुजराती में जे कहेवाय छे चक्रवृद्धि व्याज, એ જવાબદેહીની બાબતમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સમય સાથે વધતું જાય છે, અને કોઈ પણ સરકાર કે સત્તામાં હોય, હા એ તો રીપે કરવું પડે, જેમ બેંક લોન હોય, તો એ જવાબદેહીનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શું વધી ગયું છે અને એ સરભર નથી થઈ રહ્યું। આ સવાલ ઘણા મોટા છે, પણ દિલ્હીના રસ્તાઓ આ જ રીતે ક્યાં સુધી રહેશે, સંસદમાં ચર્ચાનો દુકાળ ક્યાં સુધી રહેશે? આમ તો ઘણા બધા રાજ્યોના ઘણા બધા જિલ્લાઓમાં દુકાળ જેવી પરિસ્થિતિ છે, એ જ મોટો ચિંતનનો વિષય છે। એના વચ્ચે જે યુવાઓ છે, ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી કે ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ, એ ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ જો આ રીતે રસ્તાઓ ઉપર હોય તો પછી સવાલ તો ગંભીર છે, અને એ સવાલનો ઉત્તર પ્રત્યુત્તર અથવા તો નિવારણ સરકારે જ લાવવાનું છે, નહીં કે પછી લાઠી કે ટીયર ગેસથી। ધન્યવાદ આલોકજી, ધન્યવાદ ડૉક્ટર હરિદેસાઈ।
ચર્ચામાં જોડાવા માટે આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.